Good evening, everyone. Good evening, sir. As today, this is the first class where we are meeting, especially to improve our English. You guys have come from the different area, from different society, with the purpose, and of course, the purpose is to learn how to talk in English. And we all know, especially about English, that if we don't know the language English, really I tell you, it will become very difficult to get success. As you must be knowing, I have seen the same things because I have also been from the Bihar board, and in that I had a lots of problems. And this is the only reason you guys have preferred to join the Oxbridge and learn English, of course, to make your future bright. As today we are meeting first time, normally in our class, there is no rule of speaking in Hindi. In the campus of the Oxbridge, from the main gate to all the especially parts of the Oxbridge premises, if I talk about, either you go talk about the girls' GD class, the boys' GD class, or maybe the outside waiting room, you cannot talk in Hindi. But the question comes, you have come first day, and today I would like to tell you, I really can tell you all, if you are a regular in the class for the next 6 months, I'm sure about you all are going to learn English, no doubt at all. And now today, I would like to tell you, why can you all learn English? And we all know, when we talk about the persons have different types of mind. There are the persons who are dull, some are average, some are intelligent. But if I talk about the language to talk, all the persons, no matter they are dull, they are average, or they are having brilliant brain, but in talking, all are equal. In their syllabus, in their subject, they can be plus minus, but to talk about, all are equal. So today, I'm not going to deliver the speech in English. Today, I'll make you aware that on what ground and what basis I'm promising you all, if you follow some instructions, you all can learn English. No matter you are, especially here, if I talk about starting from zero, or you have a little bit knowledge, no problem at all. All the person coming here, they all can learn English. Now, I just go back in Hindi to make you understand and give you the confidence. After today in the class, we will have no Hindi, especially neither I'll speak nor you can speak. But today, to make you understand, why do I promise you all you can learn English? Right? Now, I have some demo. Dear, you have come here especially to learn English, and English, if I talk about, or Hindi, both are language. Right? Now, complete in Hindi I start. Hindi और English दोनों language है. आपको हिंदी बोलने आता है? Right or not? If I talk about you, खड़े होइए आप. खड़े होइए. Yes sir. But आवाज थोड़ा धीरे आ रहा है, कोई बात नहीं, बैठ गए. साइना, आप खड़े हो जाइए. आपको हिंदी बोलने आता है? Yes. आप हिंदी सीखने के लिए मुझे ये बताइए, कहाँ गए थे? किसी स्कूल में गए थे? किसी कॉलेज में गए थे? किसी ट्यूशन पढ़े थे? क्या किसी ने बैठा के सिखाया? मम्मी पापा बैठा के सिखाए, बेटा बोल, बेटी है तो मैं खाना खाऊंगी, बेटा है तो बोल मैं खाना खाऊंगा. किसी ने पढ़ाया? कभी व्याकरण पढ़े? नहीं. लेकिन हिंदी बोलने आता है? कैसे? नाउ मैं आपको बताऊंगा, अगर आप हिंदी बोलना सीख सकते हैं तो अंग्रेजी बोलना भी आप सीख सकते हैं. मैं सिर्फ आप सबको यही बताना चाहेंगे कि एक एग्जाम्पल हमने साहिना का लिया, लेकिन सारे का यही कंडीशन है. किसी ने कोई भी स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन नहीं ज्वाइन किया, कभी वर्ड मीनिंग नहीं याद किया, लेकिन अगर हिंदी बोलने की बात कहूं तो सारे लोग मास्टर हैं. अभी मैं खड़ा कर दूं तो आप भाषण देना स्टार्ट कर सकते हैं आसानी से. लेकिन ऐसा कैसे हुआ मैं आपको बता दूं. प्लीज बैठिए. मैं आपको कुछ चीज दिखाने वाला हूँ. सीख सकते हैं. अगर हम हिंदी बोलना सीख सकते हैं तो अंग्रेजी बोलना भी सीख सकते हैं. इंडिया के, अगर मैं हर इंसान की बात करूं, अगर मैं एग्जांपल बिहार दरभंगा का लूं, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा आदमी आपको मिलेगा जो हिंदी बोलना नहीं जानता. बशर्ते वो गूंगा एंड बहरा नहीं होना चाहिए. चाहे वो जिस समाज में जहाँ रहता है उसका वो भाषा बोलना जानता है. अपने यहाँ जितने सारे बच्चे जन्म लेते हैं आसानी से हिंदी बोलना सीखते हैं. अमेरिका में अगर कोई जन्म लेता है इंग्लिश बोलना सीख लेता है.
सिर्फ जन्म लेने से भी नहीं फर्क पड़ता। मान लो कोई बच्चा यहाँ जन्म लेता है, 6 महीने के बाद उसे अमेरिका भेज दो, 3-4 साल उसे अमेरिका रहने दो, उसके बाद लेकर आइए। जब आप उससे बात करेंगे तो वो हिंदी बोलेगा या इंग्लिश बोलेगा? क्या उसको अमेरिका में कोई पढ़ाने वाला है 3 साल तक? छोटे बच्चे को पढ़ाया नहीं जा सकता। 2.5-3 साल के बच्चे को पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है। रीजन सिर्फ एक है, उसकी ब्रेन डेवलप नहीं है। जब वो बच्चा 3 साल में वहां रह के, जबकि ब्रेन भी नहीं था, बगैर किसी शिक्षक के, बगैर कोई वर्ड मीनिंग याद किए, बगैर कोई ग्रामर फॉलो किए अंग्रेजी बोल सकता है। तो हम आप अगर आपकी बात करें, आप बच्चे नहीं, बच्चे के चच्चे चच्चे मैं छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ और आप सबके पास दिमाग भी है। ये जानना जरूरी है कि अगर हम हिंदी सीख सकते हैं तो अंग्रेजी भी सीख सकते हैं। जरूरत है जो हमने हिंदी में काम किया है वो अंग्रेजी में काम करें तो 100% हम अंग्रेजी बोलना भी सीख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि हम आप जो हिंदी बोलना जानते हैं वो हिंदी बोलना असल में सीखे कैसे। हिंदी एक लैंग्वेज है। हिंदी, ये जो हिंदी लैंग्वेज आप सीखे हैं सिर्फ एक वजह से सीखे हैं। जैसा आप सब एग्री हुए हो कि हाँ मैंने कोई स्कूल नहीं गया, किसी ने पढ़ाया नहीं, कोई वर्ड मीनिंग याद नहीं किए, तो आप अगर हिंदी भाषा सीखे हैं तो पहला रीजन है ये सीखने का कि जब से आपका जन्म हुआ और हमारा जन्म हुआ बस हिंदी सुन रहे हैं। कई बार लोग कंप्लेन करते हैं, सर अभी तो मैं नया हूँ, मुझे बोलने नहीं आता, समझने नहीं आता, और आप बोलते हैं पहले दिन से इंग्लिश बोलो, हिंदी नहीं बोल सकते। आप सारे लोग मतलब सीनियर है, सब लोग बोल लेते हैं, मैं नहीं बोल पाता हूँ। आपको हम बताना चाहेंगे जिस फैमिली में आपका जन्म हुआ, आपके अलावा उस वक्त सारे लोग हिंदी के बेस्ट स्पीकर थे, लेकिन उसी स्पीकर को सुन के फाइनली टाइम लगा, लेकिन हुआ रिजल्ट क्या, आपको भी हिंदी बोलने आ गया। तो आप जब से आपका जन्म हुआ आप सिर्फ पहला काम किसी ने किया तो वो है सुनना, मतलब आपने हिंदी सुना। इसके बाद अगर कोई काम कोई करता है हिंदी सीखने के लिए तो वो है नकल करना। सबसे पहले आप सुने, जो सुने ये एक कुदरती एक गिफ्ट है। जो भी चीज हम सुनते हैं रियली अगर अपनी जरूरत का वो चीज हो तो दिल से सुनते हैं और वो सीखते रहते हैं। आपने सुना, उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा डेवलप किए, ग्रो किए, उस लाइफ में और नकल करना स्टार्ट कर दिए। शुरू में सुनने के बाद समझ में भी नहीं आता था, जब हम समझने लगे, समझने से भी पहले नकल करने लगे, फाइनली सुने, नकल किए और लगातार ऐसा करते रहे, गलती और सही की बगैर परवाह किए हुआ, तो फाइनली आपको हिंदी बोलने आ गया। आई होप 100% इतना ही आप काम किए हैं। कोई ग्रामर नहीं पढ़े, कोई वर्ड मीनिंग नहीं याद किए, कोई कोचिंग, कोई स्कूल, कुछ नहीं, बस इंडिया में जन्म लिए, दरभंगा में है या बिहार में है, हिंदी लोग बोलते हैं, हिंदी सुना, नकल किया और आप हिंदी के अच्छे स्पीकर बन गए। जैसा कि आपको पता है अपनी एजुकेशन के लिए इंग्लिश जरूरत बन गया है, राइट। ये ऐसा भाषा है जो हर जगह बोला जाता है और अपनी सिलेबस जो पढ़ाई आप करते हो ये इंग्लिश में है। लोग बोलते हैं क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन तो तब होगा जब एजुकेशन होगा, और एजुकेशन लेने के लिए इंग्लिश चाहिए, और इंग्लिश नहीं तो एजुकेशन लेना आज के दिन में बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर आपको इंग्लिश आ गया मतलब आप कम से कम लैंग्वेज से वाकिफ हो गए, अब नॉलेज लेना आसान है। तो अगर हम हिंदी सीखे, सुन के, नकल करके फिर बोलने लगे, इंग्लिश भी ऐसा अगर करे तो सीख सकते हैं। मैं एक चीज बताऊंगा, जब हम और आप सारे लोग हिंदी बोलना शुरू किए या सीख के बोलने लगे, ठीक ठाक से अपनी बात दूसरों तक बताने लगे और दूसरों की बात समझने लगे, उस वक्त एवरेज एज बच्चे का क्या रहा होगा, 2 साल, 3 साल या 4 साल, 2, 3, 4 साल का उम्र रहा होगा, राइट। इस छोटे बच्चे को कोई ख्याल, लिहाज, शर्म है क्या? आप सबको पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जो मर्जी जहां होता है चालू हो जाता है। मैं आपकी डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग कुछ समझ लेना। लेकिन ये 2, 3, 4 साल के बच्चे को कोई शर्म, कोई हया नहीं है। मम्मी बोलती है बेटा इधर आ, वो भी चालू हो जाता है बेटा इधर आ, राइट। आप देखे होंगे बच्चे डायरेक्ट उसकी जुबान में डेवलप नहीं होता है,
बोलने नहीं आता, क्या स्टार्ट करता, पानी को मम मम मम, पा नन नन नन। वो बच्चा बेगर वर्ड मीनिंग, बेगर कुछ पढ़े हिंदी बोलने लगा। उम्र क्या था, 2, 3, 4 साल के बच्चे अपने दरभंगा बिहार अगर इंडिया की बात करें, सारे को अच्छा हिंदी बोलने आता है, अपनी बात को आसानी से वो रख पाते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये 2, 3, 4 साल में कोई टेंशन नहीं था, जो जैसे जो कहा वो प्रैक्टिस करता चला गया। अब आई बारी कि हम 2, 3 साल में, तो बच्चे को दिमाग भी नहीं था, दिमाग नहीं होने के बाद भी भाषा सीख गया। मतलब भाषा सीखने के लिए दिमाग कम और प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। और अगर आपको दिमाग भी है फिर तो दोनों चीज अच्छा है और फास्ट सीखेंगे। तो अगर हम हिंदी ऐसे सीख सकते हैं, तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि फिर हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। यह है अपना इंग्लिश। ये दोनों भाषा है, ये हिंदी भाषा है, ये इंग्लिश भाषा है। ये अपने को आ गया, सेम इसको कॉपी करते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपका पहला काम है आपको अच्छे तरीके से दिल से इंग्लिश को सुनना है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, ये बिहार है, दरभंगा है और यहाँ के लोग बाहर नॉर्मली हर लोग इंग्लिश नहीं बोलते। तो अगर हर लोग बाहर इंग्लिश बोलते, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम आपको इंग्लिश सीखने में नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे लोग हिंदी में बोलते हैं। तो आप अगर ज्वाइन किए हैं यहाँ, तो आपका पहला काम है ज्वाइन करने का। इस जगह पे ऑक्सब्रिज पे अगर सुनेंगे तो सिर्फ इंग्लिश सुनाई देगा और आपको पता है, तो अगर आप सुनेंगे तो सीखेंगे। मतलब अगर आप ऑक्सब्रिज में आते हैं अंग्रेजी सीखने, मेरा पहला काम है मैं आपको अंग्रेजी बोल के सुनाऊं। और अगर आप सुनेंगे, छोटा बच्चा नकल कर सकता है, आप तो बड़े हैं, 100% उससे भी फास्ट आपको कॉपी करने आ जाएगा। आप दिल से सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता शुरू में समझने आता कि नहीं आता। हर बच्चे छोटे समझने तो नहीं आता था, लेकिन हिंदी बोलने में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप रोज क्लास आइए, दिल से सुनिए और सुनने के बाद अपने आप, हम इंसान हैं, चुप नहीं रह सकते, 100% अंदर से लगता है कुछ बात करें, क्योंकि हिंदी बोलना तो पाबंदी है, आप हिंदी बोल ही नहीं सकते। तो वैसे कंडीशन में आप नकल करेंगे। और आपको भी पता है जब भी हम किसी चीज को सीखते हैं तो उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो आप सुनेंगे, कॉपी करेंगे, मतलब आप प्रैक्टिस करेंगे। और जब शुरू में एक्सपर्ट तो है नहीं, या तो गलत होगा या सही होगा। अगर सही हुआ तो ठीक, अगर गलत हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, वो लास्ट टाइम तो है नहीं, फिर दोबारा और बार 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 गलती करेंगे। आपको ही पता है कोई भी चीज अगर कोई सीखता है तो शुरू में पहले गलती होता है तो ठीक होता है। मतलब आप दिल से सुनिए, नकल कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फाइनली आप इंग्लिश के अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा काम करते हैं वो एक्स्ट्रा है, जैसे वर्ड मीनिंग याद करना, ग्रामर को समझना और बुक को पढ़ना और स्पीच वगैरह सुनना। ये सब एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि आप बड़े हैं, आप होशियार हैं, आप समझ बुझ है, आपके पास टाइम है, तो और जल्दी सीखने के लिए आप वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, ग्रामर के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, ताकि अगर मैं अंग्रेजी बोलूं तो अच्छी अंग्रेजी बोलूं, मीनिंग के हिसाब से बात करूं और ग्रामेटिकल भी सही हो, ताकि आपको आगे कंपटीशन भी फेस करना है। हर एग्जाम में ऑलमोस्ट इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, तो अगर अंग्रेजी बोलने आता है तो पढ़ने भी आना चाहिए, लिखने भी आना चाहिए, समझने भी आना चाहिए। तो आप इंग्लिश सीखने के लिए सुनेंगे, कॉपी करेंगे, फाइनली आपको बोलने आ जाए। नाउ जो मैं लगभग 6 साल से ऑक्सफोर्ड यहाँ दरभंगा में चल रहा है, जो मैंने स्टूडेंट से बात करने के बाद फील किया हूँ कि असल उसका प्रॉब्लम क्या है। सुनने, कॉपी करने, नकल करना मेन प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ, क्या आपका प्रॉब्लम। मैं कई बार स्टूडेंट हमको बोलते हैं कि सर जो आप बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, जब वो बात कर रहा है तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जब मुझे बोलने की बारी आती है तो मुझे घबराहट बहुत होता है, हेजिटेशन बहुत है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मैं आपको दिखाता हूँ ये घबराहट, हेजिटेशन, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है, मैं आपको अभी ले चलता हूँ। एंड ये हिंदी जब सीखा बच्चा 2 साल 3 साल 4 साल का बच्चा था, लेकिन जब आप क्लास में बैठे हैं, मैं अगर आप में से सारे का एवरेज एज निकालूं, कुछ कोई कम है कोई ज्यादा है, तो मान के चलिए आप 18 से 20 साल के स्टूडेंट हैं। कोई 22 भी होंगे, कोई 18 से कम भी है। 18 से 20 साल एवरेज है। आई होप आप एवरेज समझते हैं। 18 से 20 साल आपका एवरेज है।
अगर मैं अब आपको बोलूं खड़ा हो जाओ, बात करो, खड़ा हो जाए, यहाँ आ जाओ, बोलो, क्या बोलते हैं? अक्सर लोग बोलते हैं नहीं सर अभी तो मैं नया हूं, अभी नहीं बोल सकता। पहले आप मुझे सीखने दीजिए फिर मैं बोलूंगा। मतलब पहले मैं सीखूंगा फिर बोलूंगा। ये ऑल मैं बताता हूं उसको, नहीं ऐसा नहीं होता। पहले आप बोलते हैं फिर आप सीखते हैं, और आप बोलते हो पहले मैं सीखूंगा फिर बोलूंगा, लेकिन नहीं, ये गलत है। पहले आप बोलो, गलत होगा कोई बात नहीं, अगर आप बोलोगे तो आप सीखोगे। मतलब हमारे यहाँ आपने 36 का आंकड़ा, आप बोलते हो नहीं पहले सीख के बोलेंगे, बोलते नहीं पहले बोलो तो सीखोगे। लेकिन मैं आपको दिखाने चलता हूँ ये ऐसा क्यों बोलते हैं, आपको घबराहट हेजिटेशन क्यों होता है। आपका उम्र है 18 से 20 साल, राइट? तो ये जो एज गैप है 2, 3, 4 साल के बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उस बच्चे को इज्जत लिहाज हया शर्म है ही नहीं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको नहीं है, लेकिन अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो यहाँ पे शर्म करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को यहाँ आप 18 साल 20 साल के चक्कर में आपको एजुकेशन है, राइट? तो ये एज का प्रॉब्लम है। अगर यही आदमी इसी उम्र में अगर अमेरिका चला जाता है या कोई भी ऐसी कंट्री जहां अंग्रेजी बोला जाता है, मुझे नहीं लगता उसको वहां सीखने में प्रॉब्लम है। तो अभी आपका एक जो प्रॉब्लम बन रहा है कि मैं कैसे बोलूं, अगर मैं बोलूं तो वो सुन लेगा और गलत होगा तो हंसने लगेगा, आवाज में सही नहीं बोल पाऊंगा, लोग मजाक उड़ा देंगे। जब तक आप बोलेंगे नहीं, यकीन मानो आप नहीं बात कर सकते, क्योंकि अंग्रेजी बात करना एक कला है और कला को सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो एज का जो गैप है ना, किसी एज के गैप को बोला जाता है हेजिटेशन, जिसका हिंदी मीनिंग आपको पता होगा मेरे ख्याल में हिचकिचाहट। ये एज गैप है। तो आज आप अगर हमारा बात मानते हो, अगर एज प्रॉब्लम है तो आज इस एज को हम खत्म कर देते हैं। आज के बाद आपका उम्र रहेगा 2 साल 3 साल या 4 साल। मतलब ये कि आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हम लगा चुके हैं ऑलरेडी दिमाग। पिछले 20 साल से यही दिमाग चल रहा है। आप सिर्फ वही करें जो आपको कहा गया है, और आप फील करो कि अभी मैं सच में इस लाइन में बचा हूं। तो जो कहेंगे करेंगे, बिंदास, बेगर हेजिटेशन किए, बेगर घबराए। कभी भी स्टेज पे आने का मौका मिले आप आओ और उसको बोलने की कोशिश करो। गलत की टेंशन नहीं है, नहीं बोलते हैं तो असल टेंशन है। इसलिए हम कहना चाहेंगे आप सबसे लास्ट में कि भाषा कोई भी सीख सकता है, सिर्फ आप उसको सुने, नकल करें तो आप बोलने लगेंगे। इसलिए यहाँ अंग्रेजी सीखना भी मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप 6 महीने हमारे साथ दिल से होते हैं, कोशिश करते हैं तो होगा। आपको ही पता है पढ़ाया सिर्फ उसी को जा सकता है जो पढ़ना चाहता है। जो नहीं पढ़ना चाहता दुनिया का कोई भी आदमी उसको नहीं पढ़ा सकता। हम यहाँ पे कुछ रूल लिखे हुए हैं, 5 रूल। अगर स्ट्रेट चालू कर दिए, इट्स ऑन। मैं यहाँ पे कुछ रूल लिखा हूँ, 5 रूल है। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं, यकीनन आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। जो आपको पढ़ाया जाए उससे रिवीजन कीजिए 2 मरतबा। वर्ड मीनिंग आपको ही पता है, आप बड़े हैं, बच्चे होते तो वर्ड मीनिंग आप नहीं भी याद करते तो चल जाता, लेकिन पूरी इंडिया में आप यहाँ पे सीखते हैं, बाहर तो लोग बात करता नहीं, टाइम कम है, कम देर आप इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं। वर्ड मीनिंग याद कीजिए। जब आप कम से कम ऑक्सफोर्ड में आ जाओ, किसी भी कीमत पे आप स्पेशली यहाँ हिंदी न बोले। गलत तो गलत, या तो चुप रहेंगे, क्योंकि ऑक्सफोर्ड में हिंदी बोलने से अच्छा है चुप रहिए आप। 4 नंबर में जाइए, 85 पर, मतलब अटेंडेंस आपका बराबर होना चाहिए। अगर अटेंडेंस कम है मतलब आप क्लास नहीं आ रहे हैं, आप सुन नहीं पा रहे हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आपको प्रॉब्लम होगा। एक दिन ऐसा आएगा आप घबरा जाएंगे और धीरे से छोड़ देंगे। और लास्ट, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा आप क्लास में होते हैं, या बाहर जो मैक्सिमम टाइम है आप बाहर होते हैं, जहां बाहर की दुनिया में कंप्लीट हिंदी बोला जाता है, बाहर की दुनिया में कंप्लीट हिंदी बोला जाता है, स्पेशली ऐसे केस में थोड़ा टफ होता है। तो आप 5वां नंबर जो है उसको आप बुक को घर पे जिस बुक में इंटरेस्ट हो उसके पढ़िए। अगर आप ऐसा करते हैं, यकीन मानो आप लोग सबको अंग्रेजी बोलने आ जाएगा। आप अगर जानना चाहते हैं कि सच में आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं कि नहीं, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? Sneha. Do you feel here you can learn English? Yes, no?
Yes, sound is not coming proper. Mr. Arkam, yes. I hope your name is Arkam. Yes. Can I have? Do you feel you can learn English here? Yes, sir. Sorry. Raja. Yes. हिंदी इंग्लिश सीख सकते हैं आप यहाँ? हाँ, बिल्कुल। ये फॉलो करने के लिए तैयार है? Yes. इट्स ओके, आप अपने लिए सब लोग ताली लगा लीजिए प्लीज।